چچا کے پاس سے پڑھنا چاہے گا یہ اس چچا کا دامن پکڑ لے گا۔ تو اب یہ کہنے کے بعد جب رسول کو چھوڑا گیا تو رسول چلے اور چلنے کے بعد ایک کے پاس سے گزرتے گزرتے جناب ابو طالب کا دامن پکڑ لیا۔ رسول ہوتے ہیں جانتے تھے کہ میری مدد کرنے والا آج کے دور میں جو آج کا امیر المومنین ہے وہ کون ہے۔ میں تو بار بار مجلسوں میں پڑھتا ہوں کہ امیر المومنین مولا کائنات بعد میں بنے ہیں جناب ابراہیم کے دین پہ چلنے والوں کے امیر المومنین جناب ابو طالب تھے۔ اور جو جناب ابو طالب کو کافر کہتے ہیں وہ آب زمزم کا پانی پینا چھوڑ دیں کیونکہ آب زمزم گم ہو چکی تھی۔ آب زمزم کی جو تلاش کر کے دی ہے وہ جناب ابو طالب ہی نے دی ہے۔ جب انہوں نے کافر کہہ رہے ہو تو ایک کافر کی نشاندہی پہ وہ باوی کیسے مان رہے ہو کہ وہ آب زمزم ہے۔ رسول اکرم رحمۃ اللہ علیہ کیسے بن گیا ہے کہ ایک رسول اکرم کی شان میں گستاخانہ شعر لکھا کرتا تھا آپ کے لیے توہین آمیز من خبر سے پہنچا تھا اپنے زمانے کے ان کو اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے صحابہ نے آنے کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے ایک شاعر ہے جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اسے قیدی بنا کے لائے گئے، رسیوں سے باندھ کے اس کی مشق کے رسول کے سامنے پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ ہے وہ شاعر جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، شعر گستاخانہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ اب ایک صحابی اٹھے اور کہا میں اس کی زبان کاٹ دوں کہ نہیں؟ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی زبان کاٹ دوں کہ نہیں؟ تیسرے نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی زبان کاٹ دوں۔ یک کے بعد دیگر ایک کے بعد ایک کہتے رہے، رسول سب سے منع کرتے رہے کہ نہیں نہیں۔ سامنے سے دروازے سے مسجد کے مولا کائنات اللہم صلی علی محمد وآل محمد داخل ہوئے۔ رسول نے کہا علی جاؤ کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ اب علی لے گئے باہر۔ اب وہ جو علی رکھنے والے تھے انہوں نے دیکھو ہم نے تو سب نے کہا کہ ہم کاٹ دیں یا رسول اللہ ہم کاٹ دیں، دیکھیں بھائی علی کس طرح کاٹتے ہیں۔ وہ جا کے دیکھنے لگے مولا کائنات کو اس کی رسی کھولی۔ رسی کھولنے کے بعد جب وہ بالکل صحیح کھڑا ہو گیا پانی والے پلایا اور کہا اپنی سواری دیکھے کہ جا۔ اب رسول کو صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے، اب وہ جو مخالف تھے جب نے دیکھا انہوں نے کہا علی نے تو اسے بھگا دیا۔ رسول کو زبان کاٹنے کی بات کہہ رہے تھے، ہم نے کہا تھا ہم زبان کاٹتے تم نے منع کر دیا، اور علی سے زبان کاٹنے کو آ تو علی نے دیکھ دیا کہ اسے ہی بھگا دیا۔ کہا یا رسول اللہ دیکھا آپ نے؟ رسول باتوں میں سن رہے ایک کے بعد ایک آن کے بیٹا دیکھا ہے رسول اللہ کیا بات ہوئی؟ کہا آپ نے جس کی زبان کاٹنے کو کہا تھا علی نے تو اسے بھگا دیا، اپنا گھوڑا بھی دے دیا۔ کہا تم نہ سمجھے علی سمجھ گیا۔ زندگی میں رسول کی بات کو نہ سمجھ سکے اور رسول کے بات کیسے صلی علی محمد محمد۔ دیکھو آج دنیا اگر صحیح معنی میں قرآن کو بھی پڑھ لیں، وہ جو ان کے رہبروں نے کہا تھا قرآن کافی ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ واقعتاً اگر وہ قرآن ہی کو کافی مان لیں تو اسی سے ہدایت مل جائے گی۔ وہی قرآن جب سورہ توبہ کی 40 آیتیں آئیں جسے سورہ برات بھی کہتے ہیں، یعنی برات کا مطلب بیزاری، تو رسول نے خلیفہ عمر کو لے کے بھیج دی کہ جاؤ تم اس کو مکے میں کے سامنے اس کا اعلان کرو۔ جیسے ہی آپ نے بھیجا فوراً جبریل وحی لے کے آ گئے کہ اے رسول اللہ سلام کرواتا ہے، تو کہتا ہے یا تو تم خود جاؤ یا جو تم نے مرد ہو اسے بھیجو۔ آپ نے فوراً علی کو بھیجا، جاؤ علی ابو بکر سے وہ آیت لے لو اور جا کے تم اس کا اعلان کرو۔ تو اب میرا سوال ہے تمام مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ سے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ اگر 40 آیتوں کا باعث بننا تو گوارا کر نہیں رہا، 40 آیتوں کی تبلیغ کا حق نہیں دے رہا، بارش کو کیا بنے گے صرف تبلیغ کا، 45 آیتوں کا اعلان ہی کر دو جا کے، تو اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ یہ 40 آیتوں کا اعلان بھی کر دیں تو وہ پورے دین کے بارش کیسے ہوگا؟ بے شک۔ اب جلن تو یہی تھی کہ ہر کو ہمیں اللہ نے بھی ذلیل کرا، کیونکہ یہ آیت ایمان تو لائی نہیں گئی، اسی لیے لائے تھے کہ ان کی چودراہٹ خطرے میں پڑ گئی کہ اگر ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تو مارے جائیں گے یا ذلیل ہوتے رہیں گے، لہٰذا اسلام میں داخل ہو جاؤ اور بات رسول ان کی اولادوں سے بدلیں گے۔ اگر دیکھیے مولا کائنات نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ کسی کو پتہ نہ چلے کہاں دفن کیا ہے، رات کے اندھیرے میں پتہ جگہ دفن کر دینا۔ جناب سیدہ کی بھی بہت سارے قبر بنا لی تاکہ پہچان نہ سکے کہ اس کی قبر ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ اگر یہ دشمنی رسول سے رکھتے تھے تو
क्यों नहीं कहा कि मेरा जनाजा खामोशी से दफना देना भेजे जाए? वो तो थे भी नहीं यहाँ, तो सिर्फ 18 या 17 8 उनकी रिवायत हैं वो आदमी थे, वो भी जगह थे और असाब बाबा थे। तो आपने क्यों नहीं कहा कि मुझे ऐसी गुमनाम जगह दफन कर दो कहीं पर? तो क्योंकि रसूल जानते थे मेरे साथ नहीं करेंगे, अगर मेरे साथ ऐसा करा तो खुल के बात सामने आ जाएगी कि ये रसूल का कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं, लिहाजा अभी खत्म हो जाएंगे, मुशरिकीन माने जाएंगे। तो आपने बिल्कुल बेफिक्री से मुझे दफन कर दो। वो जानते थे कि ये मेरा कुछ नहीं करने का, क्योंकि तावील पेश ये करेंगे कि आल का कोई सिस्टम नहीं है इस्लाम में, आज से कोई मतलब नहीं है। खुद मेरी एक से मनाजरा हुआ, वो मौलवी थे और हाफिज भी थे, जो उल्टा भी कुरान पढ़ते थे सीधा भी पढ़ते थे। कुरान को सीधा भी पढ़ रहे हैं, उल्टा भी पढ़ लेते हैं। सलावत पढ़ते इस्लाम में कोई वलील फ़र्ज़ क्या है? नमाज मैंने तो बगैर आल के नमाज पढ़ के दी। जो अव्वलीन फ़र्ज़ है यानी जिसके बगैर कोई अमल ही कबूल नहीं है, नमाज कबूल हो गई तो सारे अमल कबूल हो गए, मुत्तफ़क़ वाली बात है। तो जब नमाज ही बगैर इनके नहीं कबूल हो रही तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि आल का कोई सिस्टम नहीं है? तो उनका जवाब सुनिए, बड़ा बेहतरीन जवाब था कि आज से ना हम बुरा कहने के सीओ को ना अच्छा कहने का। भाई ये क्या बात हुई? कल तक बुरा कहते थे तो आज ये कहो कि भाई हम गलत हैं वो सही थे। अब ना अच्छा कहने के ना बुरा कहने के, यही तो मुनाफत है। अब मुनाफत इसी तरह से तो आती है कि साहब ना मुझे अच्छा कहें ना बुरा कहें। यही हरबा इस्तेमाल किया गया कि उम्मत के साथ भी उम्मत बहुत सीधी है, कौम बड़ी सीधी है। कौम ने तो उलमाओं पे छोड़ा था कि जो मौलवी साहब कहेंगे वो पता है, मौलवी साहब देंगे उनकी कब्र में उनका जाके हिसाब। मौलवी साहब ये कह देते हैं कि बस तुम नमाज पढ़े जाओ, इन चीज़ों का तुमसे सवाल नहीं होगा, कौन हक पे था कौन नहीं हक पे था। और कुरान में अल्लाह क्या कह रहा? जो हक को छुपाते हैं उन पे अल्लाह की लानत, मलाइका की लानत और लानत करने वालों की लानत होती रहेगी। तो जरूर होगा जो लानत भेजेगा। अब ये बताओ सिवाय हमारे फिरके के कोई हो जो लानत भेजता हो? हमारी तस्दीक तो कुरान की आयत कर रही है कि अल्लाह लानत भेजता है, मलाइका लानत भेजती है। जब तमाम खुदाई रसूल अहल को बयान करते रहे और हर जगह बताते रहे कि तुम्हारे बीच की कुरान अहल बैत अली मुझसे हैं, मैं अली से हूँ, हुसैन मुझसे है, हुसैन से हूँ, तो हाकिमों के दिल में आग तो लगी ज़्यादा इंतजार में थे। हजरत बिलम कोशिश की कि रसूल को मार दिया जाए, लेकिन उसमें भी नाकाम हो गए। अल्लाह ने बिजली कड़का के सबके चेहरे दिखा दिए और चेहरे जिन जिन के दिखाए थे हुज़ैफ़ा यमानी राज़दारा ने रसूल थे उनसे कह दिया था कि देखो तुम नाम मत बताना मदीने में किसी को, ये ज़रूर बता देना कि सबके चेहरे तो देख लिए हैं, लेकिन नाम न बताना कि ये हिकमत थी रसूल की। अब अगर कोई ये कहे कि साहब फला इमाम को ये पता था तो उसकी क्यों क्या, रसूल को पता था लेकिन नाम को नहीं बताने दे रहे। मसलहत होती है, वक्त की ज़रूरत होती है। हर दौर की मसलहत को ना इमाम समझेगा या रसूल समझेगा या नायब इमाम समझेगा। आज हमारे आदम में वक्त की समझ रहे हैं इस बात को कि हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, तो वक्ती ज़रूरत के तहत बात की जाती है। ऐसा नहीं है जो मुखालिफिन हैं, जो मराजा के मुखालिफिन हैं, वो इसी को मैयार बना रहे हैं कि देखो साहब वो आज ये कह रहे हैं कि उनको बुरा मत करो, उनको बुरा मत करो, लेकिन वक्त की नज़ाकत को नहीं समझ रहे क्योंकि वो दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। जिस तरह वो सहाबा किराम जिनको कहा जाता है सहाबा की दो किस्में थी, हम किसी सहाबा के दुश्मन नहीं है, जो रसूल के साहब बावफा हैं उनके कदमों की खाक को भी अपनी आंखों से लगाना भाई से, उनके ग़ुलाम भी हमारे सर के ताज हैं। लेकिन वो असाब जिनके लिए परवरदिगार ये कह रहा हो, मरम्मत कर रहा हो, जिसके लिए रसूल की हदीस है कि हौज़ कौसर से कुछ सहाबा को हारा जाएगा और खींच के फरिश्ते बाल पकड़ के घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ को ले जाएंगे। और मैं पूछूंगा कहूँगा फरिश्तों से अरे क्या कर रहे हो, जानते नहीं ये मेरे सहाबा हैं? तो फरिश्ते कहेंगे या रसूलल्लाह आप जानते नहीं, आपके बाद इन्होंने आपके दीन में कैसी कैसी बिदअतें ईजाद की। तो मैंने एक साहब से कहा, बहुत सारा मन में बैठा था कि भाई हमें नहीं पता किसने कौन सी बिदअत ईजाद की, लेकिन एक साहबी तो खुल्ला कह रहा है कि आज मैंने एक बिदअत हसना की शुरुआत की, उन्हें कैसे बचाओगे? कह रहा है आज मैंने
बिदअतें हटाने की शुरुआत की। बाकी का नहीं पता क्या क्या किसने क्या क्या किया, लेकिन एक तो नाम कह के कह रहे हैं मैं बिदअत शुरू कर रहा हूँ और वो कह रहे हैं रसूल के बिदअतियों को खींच के ले जाया जाएगा और कहा हमें जा रहा बिदअती, क्या बोल रहा है मैं बिदअत की शुरुआत कर रहा हूँ। रसूल वैज्ञानिक बनाएंगे क्या, रसूल विज्ञान का हो गया, विज्ञान हो गया मतलब रसूल बताओ कागज में कैसी कि मेरी उम्मत कयामत की बुराई से बची रहे। लेकिन कहने वाले का हरगुना और किताबुल्लाह रसूलुल्लाह की किताब काफ़ी है। जब रसूल के सामने बहुत शोर शराब होने लगा, जहाँ कुरान ने धमकी की थी कि नबी की आवाज़ से कभी आवाज़ बुलंद मत करना, वहाँ शोर शराबा हो कि रसूल को कहना मेरे पास से चले जाओ। और ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे जनाब आदम ने जब सल्तनत किया इब्लीस और अल्लाह ने कहा निकल जा मेरी वजह से, रसूल ने भी निकाल दिया। वो पहला इब्लीस था, ये उसका बाप था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। झूठी से झूठी तारीफ में ये नहीं मिलता कि जुमेरात के दिन रसूल ने अपनी वजह से निकाला, क्योंकि मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि जनाब इब्न अब्बास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हाय पंशंबे का दिन ये कह के ऐसा रोते कि आंखों के नीचे हल्के पड़ रहे थे रोते रोते। तो लोग पूछा करते थे कि इब्न अब्बास भी पंशंबे के दिन आखिर क्या हुआ था, क्या पंशंबे के दिन रसूल एक नाश्ता लिखवाना चाहते थे जिससे उनकी उम्र गुमराही से बची रहे, लेकिन कहने वाले ने कहते हरमना ये कह के रोते थे। और पीर के दिन आपकी वफात हुई, तो जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार और पीर इन 5 दिनों में अगर कोई तारीफ झूठी ये साबित कर दे कि नबी ने मुझे बुला लिया हो अपनी पद में या उन्होंने आन के माफ़ी मांग ली हो, तो हम भी उन्हें सहाबा मान लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दोनों की शहादत बिल्कुल एक ही शक्ल में है, दोनों को जहर दिया गया। ये अलग बात है कि रसूल के जहर को घटा बढ़ा के और घुमा फिरा के बताया गया कि वो खैबर की जंग से जब गुजर रहे थे एक यहूदन ने जहर दिया। अब यहूदन के यहाँ का गोश्त खाया था नबी ने। जब नबी जनाब अबू तालिब के साथ बचपन में सफ़र में जा रहे हैं और राहिब ने दावत की, तो आपने ये कह के खाना छोड़ दिया कि मैं उस खाने को नहीं खा सकता जिस पे अल्लाह का नाम था लिया गया उस जब तक ऐलान नबूवत नहीं किया था। हम तो पैदाइशी नबी मानते हैं, तुम तो 40 साल के बाद नबी मानते हो, तो अभी तो ऐलान नबूवत नहीं किया था। जब यहूदन के यहाँ का जब इस राहिब का गोश्त नहीं खाया, तो ये यहूदन के यहाँ का गोश्त ऐलान नबूवत के बाद कैसे खा लिया। लेकिन बुखारी में आज भी अगर कोई गौर और फिक्र करने वाला हो, मेरे खुद एक शागिर्द ध्यान से भाई महमूद साहब, इसी बात पे बहस चल रही थी। तो मैंने कहा बुखारी अगर तुम्हारे पास हो तो जाके पढ़ लो, आज भी मौजूद है कि रसूल जब इब्न अब्बास आए और खैरियत मालूम करने, तो आपने कहा इस वक्त मैं ठीक हूँ, लेकिन इब्न अब्बास ये जो ऊपर प्याला रखा हुआ है इसमें दवाई है और ये दवाई मेरे मुंह में ज़बरदस्ती मना करने के बावजूद इन्होंने उड़ेली है। अब जितने भी लोग बैठे हैं सब देखें कि जब कोई चीज़ अगर कोई चीज़ मेरे मुंह में लाके ज़बरदस्ती उड़ेली जाए तो उसमें बचेगी कितनी उड़ेलने के बाद, मामूली सी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने देखा उनकी तरफ, उन्होंने कहा हाँ हमने ये दवाई पिलाई थी इनको और इसलिए पिलाई थी कि शायद ये दवा इसलिए मना कर रहा है कि जैसे मरीज दवाई को मना करता है। तो आपने क्या कहा था इब्न अब्बास ये इतनी कड़वी है, आज बुखारी में लिखा है ये इतनी कड़वी है जितनी इसमें बच गई है वो इन सबके लिए काफ़ी है। अब ये जुमला ये बता रहा है कि जितनी बच गई है वो इन सब के लिए काफ़ी है। अच्छा, अगर यहाँ भी आदमी को शक हो कि शायद यूँ कह रहे हैं ये इतनी कड़वी है कि सबके मुंह कड़वे हो जाएंगे, अगला जुमला पूरी वजाहत कर रहा है। क्या वजाहत कर रहा है? जब उनकी तरफ को दोबारा देखा तो कहा अगर ये अपने रसूल कहते हैं अगर ये अपने दावे में सच्चे हैं तो इब्न अब्बास को छोड़ के सबको पिला दो। इससे बिल्कुल साफ जाहिर हो गया कि ये जहर था, क्योंकि इब्न अब्बास पिलाने वालों में नहीं है कड़वी। तो कहते थे इब्न अब्बास तुम पी के देख लो कितनी कड़वी है। तो लिहाजा ये कहना कि इब्न अब्बास को छोड़ के सबको पिला दो तो कितने, और अगर वो सच्चे थे अपने दावे में तो पी के दिखा देते कि भाई हम तो पी के दिखाए जा रहे हैं। तो जहर तो नबी को भी दिया गया, आपकी भी शहादत से भी शहादत है, लेकिन चूँकि देने वाली उनकी भी उजौजा ही है, वह जौजा भी है वह सुसर भी, वो सुसर मौजूद है वहाँ और दोनों जौजा मौजूद हैं। जहाँ दो चारों के नाम दिए इसके, वो कौन कौन था, तीसरा वाला नहीं था लेकिन अव्वल और 2 MP थे वहाँ और दोनों की बेटी थी।
जिन्हें जहर दिया गया और जहर अब यही इमाम हसन के साथ हुआ। इमाम हसन 15 रमज़ान 4 हिजरी को आपकी विलादत हुई। आपकी विलादत के पहले का मौका यह है कि उम्मुल फज़ल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब सुनाती है कि या रसूल अल्लाह मैं घबरा गई, मैंने ख्वाब में ये देखा आपका पूरा मेरी गोद में आने लगा। मैं तो बात से घबराई हूँ कि क्या वजह है कि आपने में घबराने की बात नहीं है उम्मुल फज़ल, बल्कि असल मामला ये है कि मेरी बेटी जनाब सैयदा फातिमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फर्जंद पैदा होने वाला है इमाम हसन, और उसकी परवरिश का जिम्मा तुम्हें दिया। ये ख्वाब तुम्हारा बिल्कुल सच्चा है, मेरा ये एक टुकड़ा तुम्हारी गोद में आने वाला है। इमाम हसन की इमाम हसन ने भी बड़े मसाइल देखे, क्योंकि 2 हिजरी में जंग बदर हो गया और 2 जंग बदर के बाद हमारे सैयदा का हाथ मौला कायनात से हो गया और 4 हिजरी में जनाब इमाम हसन की विलादत हो गई। अभी औरत का वो मंजर गुजरा ही था कुछ दिन पहले 3 हिजरी में कि रसूल के साथ छोड़ दे कर गए थे। अगर मौला ना होते तो रसूल की ज़िंदगी रसूल की मुखातबत कर दिया होता, लेकिन मौला ने चारों तरफ से आपकी हिफाजत की है। इमाम हसन बचपन से, क्योंकि इमाम पैदाइश इमाम होता है तो बचपन ही से आप नज़ारे देखते हैं, लेकिन नाना के एहसास कैसे नाना की लापरवाही भी कर रहा है, मैदान में छोड़ के भाग भी रहे हैं। और आपने वो मंजर भी देखा था जब ज्ञान कहा गया था, और मंजर भी देखा था जब दिया गया। सारे मंजर इमाम हसन की नजर से गुजर रहे थे और आप भी जानते थे कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। इमाम हसन का मामला भी है कि जब मौला कायनात की शहादत हो गई, मौला कायनात की शहादत के बाद इमाम खुतबा देता है कई जो नास आज की तारीख में जिसकी शहादत हुई है वो किरदार और अमल में ऐसा था न पहले कोई न आने वाला न कोई क़यामत तक होगा। और जो जानते हो वो जानते हो, जो नहीं जानते हो कुछ लोग मैं नवासा रसूल का फर्जंद भी जिगर। जब आपने खुतबा दे दिया कैस इब्न साद ने हाथ बढ़ाया कि मौला हाथ बढ़ाइए और हम आप पे अल्लाह के तो कुरान और अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे और आपके साथ जंग करने पे बैठ करते हैं। आपने कहा नहीं, सिर्फ कुरान और अल्लाह की सुन्नत की बात करो, इसी में सब कुछ आ जाता है। अगर तीसरी कोई बात होगी तो आप अल्लाह की रसूल की सुन्नत और कुरान को नाक़िस समझ लें। तीसरी शर्त की ज़रूरत ही नहीं, इन 2 बातों में ही सारी बात होती है। तो 60,000 आदमियों ने आपके हाथ में बैठ की, कुछ रिवायतों में 40,000 है, 60,000 है, तो 40,000 आदमियों ने बैठ कर ली कि हम आपके साथ हैं। जब माविया को ये पता चला कि इराक़ में फिर औलाद अली की हुकूमत कायम होने जा रही है, उसने अपनी रेखा दवानी शुरू कर दी और एक दिन उसने हसन को बुलाया अपने दरबार में। कैसे बुलाया? उससे उपरियास ने, वलीद बिन उत्बा ने, तैयबा ने, इन्होंने सब ने कहा कि हसन को बुलाओ और माज़ल्लाह हम इमाम हसन की तस्वीर करेंगे और उन्हें यहाँ से जलील करके भेजेंगे। उसकी ताकत है जो मासूमीन को जलील कर सके, जिसका अल्लाह ने रखा इमाम हसन। लेकिन बागिया ने कहा था उससे कि ऐसा तुम कर नहीं सकते, कहीं ऐसा ना हो कि वही हमें जलील करके चले जाओ। लेकिन बुला लिया गया। बुलाने के बाद जब इमाम ने देखा कि मैं चाहता हूँ आप अल्लाह के भरोसे में आ गए, कब किस लिए बुलाया है? कई लोग आपसे बात करना चाहते हैं, ये कहते हैं कि उस्मान का कत्ल जो है वो आपके बाबा हज़रत अली ने कराया है, ये साबित करना चाहते हैं। अब वो एक के बाद एक कहना शुरू किया कि उस्मान का कत्ल तुम्हारे बाप शहीद हैं और तुम्हारे बाप माज़ल्लाह ऐसे थे कि वो तो रसूल का कत्ल कराने पर आमादा थे, वो तो पता चल गया। यानी उल्टा चोर कोतवाल को लाठी जो पिलानी फुटकी थी वो मौला कायनात पर रख दी गई। और तुम्हारे बाप ने हमेशा इक़्तिदार के लिए मामला किया, वो ऐसे थे जो अपने ख़ानदान वालों को, अपने कबीले वालों को काट रहे थे, तरह तरह की बातें की। जब सब कुछ कह चुके तो इमाम ने कहा, अब जब इमाम को जवाब देना था तो इमाम ने कहा, अमीर शाम अमीर माविया, तूने मुझे यहाँ बुलाया है, ये तेरी शय पे हो रहा है सब।
अगर मुझे पता होता तो मैं भी बनी हाशिम के इतने अफराद साथ लेके आता। लेकिन ये जो कह रहा है कि अगर तुम्हें कत्ल कर देंगे तो कत्ल करने की किसी में कोई ताकत नहीं, ये तो मशीत खुदाबंदी है, जो होगा वो देखा जाए। अब मैं गिनवाना शुरू करूँ, तेरे से शुरू करता हूँ कि तू क्या था और मेरा बाप क्या था। जब जंग बदर में मेरे बाप के हाथ में पर्चे में इस्लाम था और तू और तेरा बाप कुफार का अलम उठाए हुए। जंग बदर से लेके और जंग मक्का तक तुम्हारी ये पोजीशन थी कि तुम कुफार के साथ थे और बुतों के पूजने वाले थे, और हर जंग में मेरे बाप ने इस्लाम की मदद की। तुम बैत के बाद भी छोड़ के भागने वालों में से सारी बातें जब महाराज में हो चुका और इमाम चले गए तो माविया ने कहा मैं तुमसे कहता था ना कि तुम हसन को